Hello students, this is Amrendra going to cover you the second chapter Lost Spring. It is an excerpt of Historian Childhood which is written by Anish Jung. First of all, I would like to know about the author. Then I will tell you introduction of the chapter. What's the meaning of Lost Spring? Here, spring means childhood. Childhood. So first of all, let's start the chapter Lost Spring, which is written by Anish Jung. Firstly, know about the author. Anish Jung was born in 1964 at Rourkela. That's now you can say that. She spent her childhood and adolescence in Hyderabad. She received her education in Hyderabad and in the United States of America. Her parents were both writers. Anish Jung began her career as a writer in India. She has been an editor and columnist for major newspapers in India and abroad and has authored several books. The following is an excerpt from her books titled Lost Spring, Stories of Stolen Childhood. Here she analyzes the greening poverty and tradition which condemn the children to a life of exploitation. So firstly we know about Anish Jung. Just I told you that she was born at Rourkela in 1964 in India. She is an Indian woman author. She was a journalist. She was a columnist. She belongs to an aristocratic family. Aristocratic family, just I told you, that's a good family. She belongs very good family. Her parents both writers, and her most noted work, Unwillingly in India, was a detailed chronicles of the lives of women in India. And in this chapter, she describes and she analyzes the grinding poverty and tradition which condemn a children to the life of exploitation, in which is the students should go to school, the children should go to school. In that age, some children are compelled to do the work as a child labor. So in this chapter, I will describe about it. First you know the introduction of the chapter, then I will tell you summary. So let's start. Introduction of the chapter. In this lesson, or you can say that this chapter is an excerpt from Anish Jung, Lost Spring, Stories of Stolen Childhood. She analyzes the growing poverty and tradition which torment and lives of innocent children. Like this, there are two boys who depicts in this story. First, Sahib Alam, who belongs to Simapuri, and second is Mukesh, who belongs from Firozabad. Every child worker leads a life of misery and want. The rag pickers of Simapuri, it is situated near Delhi, and the children engaged in the bangle making industry of Firozabad share the same fate. You know well, Firozabad city is known for bangle makers. They share the same poverty, dirt and exploitation. We shall study about Mukesh and Sahib Alam, but both theme is same, poverty. So let's start first about Mukesh. Sometimes I find a rupee in the garbage. But I will tell you line by line
through some points you will be able to understand easily for this topic. So let's start. Here we'll know introduction, just I told you. Let's know the summary. Through these 8 points, these points will help you to understand easy way by point wise. So let's start. First is searching for gold in the garbage. First 4 points are about Sahib Alam, and 5, 6, 7, 8 last 4 about Mukesh, who wants to be motor mechanic. So first is searching for gold in the garbage. Here Anis Jungs, who is the author of this chapter, comes across Sahib every morning. She encountered every morning. He is crowning. He means Sahib Alam is crowning for gold in the garbage dumps. He came from Dhaka. He does not even remember his old home because he forgot everything. He does not go to school. There is no school in his neighborhood. That's why. If you talk about our slum areas, nowadays there's a lot of students, a lot of children. We can't say that student. When they should send to school, but they are compelled to do work. That's the poverty. This is the theme of the poverty. So I like that. There is no school in neighborhood. His full name is Sahib Alam. Sahib-e-Alam. It means Lord of Universe, but he does not know what it means. He roams in the street with his friends. They are an army of barefoot boys. They work in the morning and disappear at noon. They live in perpetual state of poverty and can't afford even shoes or chappals. Other young boys wear shoes, but most of rag pickers like Sahib remain shoeless, well. रैक पिकर्स जो कूड़ा उठाते हैं. सो इन द फर्स्ट जैसे देखा कि आपने कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं स्कूल जाने के बजाय वे मजबूर हो जाते हैं अपनी लेवलीहुड चलाने के लिए. उसमें पहला था जो जैसे आई टोल्ड यू दैट कि सर्चिंग फॉर गोल्ड इन द गार्बेज. जो साहब आलम था उससे उसकी मुलाकात जो राइटर्स होती हैं अनीस जंग, उनकी मुलाकात रोज़ हो जाती थी. जब भी मुलाकात होती थी वह देखती थी कि वह स्क्राउंड कर रहा है, कचरे के ढेर में सोना ढूंढ रहा है, गोल्ड ढूंढ रहा है. गोल्ड मीन्स उसके लिए जीविका, रोटी, रोजी रोटी. वह ढाका से आया हुआ था वहाँ पे, और शायद उसको अपने पुराने घर का याद भी नहीं है कि हाँ वहाँ पे घर था. और कभी स्कूल भी नहीं जाता था क्योंकि स्कूल भी नहीं था वहाँ पे, जैसा आई टोल्ड यू. और उसका पूरा नाम था साहिब आलम, जिसका मतलब ये होता है यूनिवर्स, गॉड ऑफ यूनिवर्स. ही डजंट नो मीन ऑफ हिज, व्हाट्स द मीन ऑफ साहिब आलम. कितना अच्छा नाम है उसका, जिसका मतलब ये होता है कि इवन लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, पूरे ब्रह्मांड का मालिक. बट वह इसको कोई मतलब नहीं था. उस गलियों में अपने फ्रेंड्स के साथ इधर से उधर घूमता रहता था नंगे पाँव. बहुत सारे बच्चे उसके जैसे, वो अकेला नहीं था. सीमापुरी में रहने का मतलब ही है कि रैक पिक करना. दोपहर तक बच्चे सुबह निकलते थे, दोपहर तक इधर से उधर रैक पिक करते थे. जूते चप्पल भी नहीं पहनते थे. सारे बच्चे ऐसे ही रहते हैं, जितने भी कबाड़ा उठाते हैं रैक पिक करते हैं. सेकेंड इज Simapuri. Just now Simapuri is the village, is the place where all rag pickers stay there. जो उतने भी बांग्लादेश से आए हुए हैं सीमापुरी में ही रहते हैं, जो दिल्ली से सटे हुए हैं. वो देखिए सीमापुरी या होम फॉर रैग पिकर्स फ्रॉम बांग्लादेश. जितने भी बांग्लादेश से आए हुए हैं सब के सब जो रैग पिक करते हैं वो सब के सब सीमापुरी में ही रहते हैं. Here most of the rag pickers live in Simapuri. Just I told you that. It is a place on the
पेरीफेरी ऑफ दिल्ली, एकदम सटे हुए दिल्ली से. देयर इज नो साइन ऑफ एनी डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस हियर. लगता भी नहीं कि उनका विकास होना है. उनकी जो मकान है पूरी तरह से अपने मिट्टी तिरपाल, यू नो दैट्स, झोपड़ झुग्गी में देख सकते हो जितने बच्चे होते हैं यहाँ पे, जितने लोग होते हैं, उसी का कोई नाला नहीं है. देयर इज नो सीवेज, कोई नाला नहीं है. नो ड्रेनेज और रनिंग वाटर, कोई व्यवस्था नहीं है वहाँ पे. और हियर दे स्टे मोर देन 10,000 रैग पिकर्स हैव लिव्ड देयर फॉर 30 years. नाउ यू कैन इमेजिन, 30 साल से लगभग 10,000 से अधिक रैग पिकर्स वहाँ पे रह रहे हैं. एंड ईच एंड एवरी वन केम फ्रॉम बांग्लादेश इन 1971. यू नो दैट 1971 बांग्लादेश जब आज़ाद हुआ था इंडिया की मदद से, बहुत सारे सेल्टर्स थे, भग आए अपने लिवलीहुड के चक्कर में. दे हैव नो आइडेंटिटी फॉर और परमिट्स. दे डू हैव राशन कार्ड्स that enables them to vote and buy grain. For them, food is more important than identity. That's the most important. उनके पास कुछ नहीं है, ना वोट देते हैं, ना ही उनके पास परमिट कार्ड है, लेकिन उन्हें अनाज खरीदने के लिए उनके पास राशन कार्ड होता है. और उनके लिए जो उनका अपना भोजन, जस्ट आई टोल्ड यू दैट कि फूड इज मोर इम्पॉर्टेंट, भोजन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है उनकी आइडेंटिटी से. कोई क्या कहता है, कुछ कहता है, दे डजंट मीन दैट. नेक्स्ट टॉपिक इज सर्वाइवल मीन्स रैग पिकिंग. उनकी सर्वाइव मतलब जीवित रहने के लिए मतलब ये कि रैग पिक करना. दे डोंट नो एनीथिंग, दे हैव नो ऑप्शन. उनके पास कोई ऑप्शन भी तो नहीं है. नहीं, अगर उन्हें सरवाइव करना है, जीवित रहना है, तो रैग पिक करना ही करना है. सो हियर इन दिस टॉपिक चिल्ड्रेन ग्रो अप, बच्चे बड़े होते हैं. दे बिकेम पार्टनर्स सर्वाइवल. पार्टनर्स मीन्स अपने मम्मी पापा का हाथ बंटाते हैं. मम्मी पापा भी उनकी वही काम करते हैं और लाजमी है ऑब्वियसली अगर पेरेंट्स करेंगे तो बच्चा चाहेगा मैं भी वही काम करूं, तो वो भी उनकी पार्टनर बन जाते हैं. और सर्वाइवल इन सिंगापुरी मीन्स रैग पिकिंग. थ्रू द ईयर्स इट हैज एक्वायर्ड द पोजीशन ऑफ फाइन आर्ट. कुछ सालों से कह सकते हो कि उनके जो रैग पिक करते हैं थोड़ा सी स्टाइल बदला हुआ है, लेकिन फिर भी रैग पिक करना उनका मेन मकसद है, मेन पर्पज है. उसी को बेच करके वो अपना जीविका चलाते हैं. कभी कभी जब उसी कूड़े के ढेर में उन बच्चों को चांदी का सिक्का मिल. नेक्स्ट है साहेब गेट्स अ स्मॉल जॉब. आफ्टर दैट साहब को एक नौकरी मिल जाती है, वही साहेब. वन मॉर्निंग द नरेटर सीज साहेब स्टैंडिंग बाय द फेंस गेट ऑफ अ क्लब. सुबह सुबह यू कैन टेल दैट कि जो साहब होता है, जो नरेटर होते हैं, उनसे मिल जाता है. वो एक फेंस के पास एक क्लब होता है, उसे गेट की चारदीवारी के पास खड़ा रहता है. एंड दे आर टू यंग मैन ड्रेस इन वाइट और प्लेइंग टेनिस. खेलने बच्चे जाते हैं ना वो अपने यूनिफॉर्म में, जो अच्छे बच्चे होते हैं बड़े घर के. साहिब इज ऑल्सो वेयरिंग टेनिस शूज. दे आर डिस्कार्डेड शूज ऑफ सम रिच बॉय. ऐसा लगता है वो भी शूज पहना हुआ था, जिससे होता है ना कि हम लोग का जो शूज फट जाता है तो फेंक देते हैं, वही वो ऐसा लगता है कि जो धनवान बच्चे होते हैं उनका डिस्कार्डेड होता है, वो पहना होता है. एंड ही रिफ्यूज टू वियर. यू नो दैट ये थोड़ा सा होल होता है या छेद होता है, तो जो धनवान बच्चे होते हैं वो शूज को पहनने से मना कर देते हैं. और वहीं पे देखते हैं कि फॉर साहेब इवन शूज विद अ होल इज अ ड्रीम कम ट्रू. आई लाइक दैट. नाउ साहेब वर्क्स इन टी स्टॉल. ही गेट्स 800 रुपीज एंड ऑल हिज मील्स. अब साहेब को 800 रुपये की नौकरी एक टी स्टॉल पे मिल जाती है.
बट हिज फेस लॉस्ट एवरी लुक। लेकिन जो उसका चेहरा था ना, जो फ्री होके काम करता था अपने मन से, चलो जब मन करता तब हमने गार्बेज उठाया, नहीं मन किया नहीं उठाया, तो लाइक दैट वो फ्रीडम नहीं थी उसके पास, वो फ्रीडम छीन ली गई थी। ही इज कैरिंग अ स्टील कैनिस्टर, एक जैसे देखते हो ना चाय की दुकान पे बच्चे होते हैं पकड़े होते हैं हाथ में, और कप का प्याला, चाय का प्याला ले जा करके देखते रहते हो कि देते हैं, जितने भी लोग होते हैं सर्व करते हैं। लेकिन उसे वह हैवियर देन द प्लास्टिक बैग वाज, जो प्लास्टिक बैग लेकर के घूमता था अपने कंधे पर के, यूज्ड टू कैरी ऑन हिज शोल्डर, वो उससे ज़्यादा हैवी दिखते थे जो हाथ में लिया हुआ था। वो 50 किलो का 20 किलो का जो बोझा था उतना हैवी नहीं होता था जितना वो जो कैनिस्टर लिया हुआ था, जो स्टील का जो एक बर्तन होता है जिसमें चाय दिया जाता है, सर्व किया जाता है, वो ज़्यादा हैवी दिख रहा था क्योंकि वो आज़ादी नहीं थी उसकी, क्योंकि बैग तो कम से कम उसका अपना था, जो कैनिस्टर था उसका तो अपना था नहीं, वो तो शॉप ओनर का था। और दैट्स वाई यू कैन टेल दैट कि साहिब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर। और इस प्रकार देख सकते हो कि साहब की किस तरह से आज़ादी छिन जाती है। सेम स्टोरी अबाउट मुकेश। मुकेश आल्सो बॉर्न्स इन फिरोजाबाद, वो भी बैंगल मेकर्स की लोगों के बीच में ही पैदा होता है। जो बैंगल नहीं बनाना चाहता है, वह चाहता है कि मोटर मैकेनिक कार बने, ड्राइवर बनना चाहता। सो अबाउट मुकेश, थ्रू these points we will know. First is here. मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर। वो नहीं चाहता कि मैं किसी के अंडर में काम करूं। ही वॉन्ट्स टू बी अ मोटर मैकेनिक। ही विल लर्न हाउ टू ड्राइव अ कार, बट ही ड्रीम्स लूम्स लाइक अ मिराज। जो उसके सपने थे ऐसा लग रहा था कि वो मिराज की तरह है, जो कभी पूरे नहीं होने वाले। बिकॉज ही लिव्स इन अ डस्टी स्ट्रीट ऑफ फिरोजाबाद। यू नो वेल, फिरोजाबाद इज नोन फॉर बैंगल मेकर्स। एक टाउन ही ऐसा फेमस है जो बैंगल मेकर्स के लिए है। ईच एंड एवरी फैमिली इज इंगेज इन मेकिंग बैंगल्स। हर एक दूसरा आदमी, तीसरा आदमी, हर एक घर बैंगल बनाने में जुटा हुआ है। तो नाउ यू कैन थिंक दैट कि जो बच्चे जिस माहौल में रहेंगे वही तो सीखेंगे। और इट इज द सेंटर, जस्ट नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट फिरोजाबाद, इज द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री। ये पूरी इंडिया का जो ब्लोइंग इंडस्ट्री है, ब्लोइंग इंडस्ट्री मतलब ग्लास को जला करके पिघला करके चूड़ियाँ बनाई जाती हैं फॉर वुमेन, महिलाओं की। अब मुकेश फैमिली इज अमॉन्ग देम, और मुकेश की फैमिली भी उन्हीं में से एक है। सो नेक्स्ट यू कैन से दैट ईयर 20,000 चिल्ड्रेन वर्क इन द ग्लास फर्नेस। लगभग 20,000 बच्चे उस ग्लास फर्नेस में काम करते हैं। अबाउट 20,000 चिल्ड्रेन वर्क इन द ग्लास फर्नेस। No one knows that it is illegal or legal to work in the glass furnace with high temperature. उन्हें भी नहीं पता कि एक तरह से इलीगल है। They don't know. They live in sticking lanes. वो नैरो गलियां में, तंग गलियों में रहते हैं। घर भी बहुत उनके अच्छे नहीं हैं। Their homes are halls with crumbling walls. They have no windows. पैक है पूरा, जो घर में रहते हैं पूरा घर पैक है उनका। They are crowded with families of human and animals. The narrator sees a frail woman. She is cooking the evening meal for the family. She is the wife of Mukesh's eldest brother. जिसे जाता है आगे नाइटर की जो
नेटे की मुलाकात मुकेश से होती है। जो मुकेश लेकर के जाता है अपने फैमिली से मिलाना, तो देखता है वहाँ उस फैमिली में एक मुकेश के भाई की पत्नी, जो उसकी भाभी रहती हैं, एकदम दुबली पतली, इवनिंग मील पका रही होती हैं। उनकी उम्र भी बहुत ज़्यादा नहीं होती है, बट सी नॉट मच ओल्डर बट कमांड्स रिस्पेक्टेड बहू ऑफ द हाउस। यू नो वेल की बहू जो पतोहू होती हैं वो बहू कहलाती हैं, और उनको चाबी दे दिया जाता है घर का सभी सामान, और घर की मालकिन भी बोला जाता है। यू नो वेल इलर ऑफ द फैमिली जो रहता है, जो पुअर बैंगल मेकर, सो भी वही काम करता है। And he failed to renovate his house for near his able to send his two sons to school. साहब आलम की तरह वहाँ भी कोई जो उसका ओनर होता है उस घर का, वो भी अपने बच्चों को, 2 बच्चे होते हैं, एक मुकेश होता है, मुकेश का बड़ा भाई, वो भी कभी स्कूल नहीं गए होते हैं, क्योंकि उनकी भी गार्जियन मजबूर करते हैं, फोर्स करते हैं, पढ़ लिख के क्या करोगे, दिस यू हैव टू डू दिस वर्क, तुम्हें यही काम करने हैं। तो और उसमें काम करने में नेक्स्ट पॉइंट है तुम्हारा कि एंड अप लॉसिंग देयर आई साइट। काम करते करते अपनी वे आँख की रोशनी खो बैठते हैं। मुकेश ग्रैंड मदर हैज वॉच हर ओन हस्बैंड गो ब्लाइंड विद द डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास, but they cannot give up God-given lineage. God-given lineage नहीं बोलते हैं भगवान को ये मंजूर है तो क्या करना। कहते नहीं, जो हमारी खानदानी परंपरा चल रही है हम उसको छोड़ भी तो नहीं सकते। वहीं एक दादी उसकी होती हैं जो अपने हस्बैंड को ब्लाइंड होते हुए उन्होंने देखा और कहती हैं क्या करें, भगवान को यही मंजूर है तो यही है, हमारी परंपरा भी यही है, तो वी कैन नॉट गो बियॉन्ड दिस, हम इसके बियॉन्ड जा भी नहीं सकते हैं। बिकॉज दे हैव बीन बोर्न इन द कास्ट ऑफ बेंगल मेकर्स इन एवरी अदर हाउस इन एवरी स्ट्रीट ऑफ फिरोजाबाद वन कैन सी बैंगल्स ऑफ ईच एंड ऑल कलर्स। दे आर पॉइल ऑन hut men sits boy and girls with their father and mothers welding pieces of colored glass into circle of bangles. Now it can be seen each and everyone. जिस उम्र में उनको स्कूल जाना चाहिए और अपने पेरेंट्स के साथ में अपने मम्मी पापा के साथ बैठ करके उनके काम में हाथ बंटाते हैं। That's why they are compelled, they have no option. And that Savita is a young girl sitting alongside an elderly woman. She does not know the sensitivity of the bangles she has make. जो बना रही है वो अपने पेरेंट्स के साथ में, एक सविता नाम की लड़की है, वो उसकी सेंसिटिविटी के बारे में भी नहीं जानती है, पवित्रता के बारे में भी नहीं जानती कि जो चूड़ियाँ बना रही है कितना पवित्र है वो। She doesn't know. ये भी उन्हें नहीं पता कि जो चूड़ियाँ हैं कि symbolize in Indian woman सुहाग, दे सिम्बलाइज ऑस्पिशियस इन मैरिज, कि सुहाग की वो सिंबल हैं, वो सिम्बलाइज करती हैं कि ऑस्पिशियस मैरिज की, उन्हें भी नहीं पता। और उसी काम में करते करते वहाँ उसके मुकेश के पापा ग्रैंडफादर की आंखें भी चली गई होती हैं। बट दे आर कंपेल, मजबूर होते हैं। तो द लास्ट ऑप्शन mind numbing toil. Numbing, this you cannot do anything, any work. Numbing toil दिमाग को पूरी तरह से कर सकते हो, कितना मेहनत करते हैं कि कोई और काम उनको नहीं दिखता है। So listen, this is the last point here. कह सकते हो कि जब फिरोजाबाद में वह रहते रहते थोड़ा समय बदलता जाता है, बीतता जाता है उनका, तो यह सब माइंड नंबलिंग टॉयल से किल द इनिशिएटिव ऑफ द यंग। हजारों बच्चों के बचपना खत्म हो गया वहाँ पे, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। दे कैन नॉट ऑर्गेनाइज देमसेल्फ इनटू अ कोऑपरेटिव मिडिल मैन एक्सप्लॉइट देम, नो वन इज देयर एंड नो वन वांट्स टू
get rid of this problem. There is no leader among them. कोई ऐसा लीडर नहीं है कि जो उनकी आवाज उठाए. There are two words. One is the word of Bengal makers. They are caught in a web of poverty. And second is word of money lenders, जो उनको कर्जा देते हैं. Middleman and the policeman who preach them. But among them, Mukesh's eyes are full of hope. He wants to be a motor mechanic. He does not want to work with their parents, with their family, with his family. The narrator, Ani Jung, asked him if he dreams of flying a plane. He silently said, no. He is content to dream of cars that move down the street of his town. Few planes fly over फिरोजाबाद. जब पूछा जाता है कि क्या तुम प्लेन का ड्राइवर बनना चाहते हो, बोला नहीं, मैं तो कार का ड्राइवर बनना चाहता हूँ. जो मैं प्लेन तो देखता हूँ फिरोजाबाद के ऊपर से बहुत सारी जहाजें जाती हैं, बट ना आई वांट टू मोटर मैकेनिक. सो आपने देखा किस तरह से दोनों की कहानियाँ सेम हैं. एक जहाँ पे इंडियन होते हुए भी उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, मजबूर है, और दूसरा सीमापुरी अपने लिवलीहुड चलाने के लिए वो आए हुए हैं, सर्वाइव करने के लिए बांग्लादेश से आए हुए हैं. सो आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड थ्रू दिस पॉइंट्स. ये जो भी पॉइंट है इसके थ्रू आप समझ गए होंगे इजीली. बट नेक्स्ट वीडियो हम लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे इसका एक एक करके, पैराग्राफ वाइज और लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन. तब तक थैंक यू वेरी मच.